1,80,07,000 increased pension amount reached the accounts of 16,370 pensioners in Jamalpur. CM Nitish Kumar organized a virtual ceremony and gave increased amount to 4 lakh pensioners of the state. 1,11,69,000 pensioners of the state will get direct benefit, CM. Programs organized at many places regarding CM virtual ceremony. CM gave big relief to pensioners. Increasing pension from 400 rupees to 1100 will prove to be a milestone, Chief Councillor. On Friday, the Social Welfare Department, based on the policy of Bihar government's development with justice, has directly transferred the amount from 400 to 1100 to the accounts of about 4 lakh pensioners of the state. In this, former CM Nitish Kumar organized a virtual ceremony and addressed the ceremony. He said that 1,11,69,000 pensioners of the state will get direct benefit. Here, the live telecast of CM virtual ceremony was shown in the new auditorium of Municipal Council Jamalpur, where hundreds of beneficiaries were present. On the occasion, Chief Councillor Parvati Devi said that this decision of the CM will definitely prove to be a milestone in helping the elderly, disabled and widows to maintain themselves. The increased amount has started reaching the bank accounts of the pensioners of Jamalpur directly. Now this process will start from the 10th of every month. Nagar Panchayat Executive Vijayshil Gautam said that Bihar government heard the plea of the pensioners in Mahila Samvad and assured that very soon a decision will be taken to increase the amount in this direction. In this way, the amount of June month is being given in July. Here, the live telecast of CM virtual ceremony was also shown in various panchayats of Jamalpur block. The beneficiaries were informed about this through the ceremony led by Jamalpur BDO Prabhat Ranjan, and they were advised to update their account in the bank and get information about the amount. He said that if the amount has not reached, then give information, so that any kind of problems can be resolved. He said that in Jamalpur block, there are a total of 16,370 beneficiaries in Itri Panchayat, Induruk East and West Panchayat, Paraham Panchayat, Patam East and West Panchayat, Ramnagar Panchayat, Rampurkala Panchayat and Singhia Panchayats, who will be provided an amount of about 1,80,07,000 at the rate of 1100 rupees every month. On this occasion, Nagar Panchayat Deputy Chief Councillor Anjali Kumari, Councillor Alok Kumar, Kailash Singh, Sudesh Mandal, Mukesh Sharma, Head Clerk Rajiv Kumar, Shashikant and others were present. जमालपुर में 16,370 पेंशनधारियों के खाते में पहुंचा 1,80,07,000 बड़ी पेंशन राशि। सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल समारोह आयोजित कर सूबे के 4 लाख पेंशनधारियों को बड़ी राशि दी। सूबे के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को पहुंचेंगे सीधा लाभ। सीएम वर्चुअल समारोह को लेकर कई जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। पेंशनधारियों को सीएम ने दी बड़ी राहत, 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 पेंशन मील का पत्थर होगा साबित, मुख्य पार्षद। शुक्रवार को बिहार सरकार की नीति न्याय के साथ विकास पर आधारित समाज कल्याण विभाग की ओर से सूबे के करीब 4 लाख पेंशनधारियों को 400 राशि से बढ़ाकर 1100 राशि सीधे खाते में पहुंचा दी है। इसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल समारोह आयोजित कर समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सूबे के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इधर नगर परिषद जमालपुर के नए सभागार में सीएम वर्चुअल समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लाभुक मौजूद थे। मौके पर मुख्य पार्षद पार्वती देवी ने कहा कि सीएम के इस निर्णय से निश्चित ही वृद्धा, दिव्यांग व विधवाओं को अपना भरण पोषण करने में मील का पत्थर साबित होगा। जमालपुर के पेंशनधारियों के बैंक खाते में सीधा बढ़ी हुई राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। अब ये सिलसिला प्रत्येक माह के 10 तारीख से शुरू होगी। नप एग्जीक्यूटिव विजयशील गौतम ने कहा कि बिहार सरकार ने महिला संवाद में पेंशनधारियों की फरियाद को सीएम नीतीश कुमार जी ने सुना और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस दिशा में राशि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। इस तरह जून माह का राशि जुलाई में दी जा रही है। इधर जमालपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी सीएम वर्चुअल समारोह का सीधा लाइव प्रसारण दिखाया गया। जमालपुर बीडीओ प्रभात रंजन की अगुवाई में समारोह के जरिए लाभुकों को इसकी जानकारी दी गई तथा उन्हें बैंक में अपने खाते को अपडेट कराने और राशि की जानकारी लेने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा कि अगर राशि नहीं पहुंची है तो जानकारी दे, ताकि किसी भी तरह की समस्याएं दूर की जा सके। उन्होंने कहा कि जमालपुर प्रखंड में ईटेहरी पंचायत, इंद्रूक पूर्वी व पश्चिमी पंचायत, परहम पंचायत, पाटम पूर्वी व पश्चिमी पंचायत, रामनगर पंचायत, रामपुर कलान पंचायत और सिंघिया पंचायतों में कुल 16,370 लाभुक हैं, जिन्हें 1100 रुपए की दर से करीब 1,80,07,000 राशि मुहैया हर महीने कराई जाएगी। मौके पर नप उप मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी, पार्षद आलोक कुमार, कैलाश सिंह, सुदेश मंडल, मुकेश शर्मा, प्रधान लिपिक राजीव कुमार, शशिकांत सहित अन्य मौजूद थे।
आप लोगों ने सारी बातों की चर्चा कर दी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब से हम लोगों की सरकार बनी समय के बाद से सब लोगों के हित के लिए और सब जगह के लिए बेहतर काम करने का हम लोगों ने शुरू किया। से लेकर के तो चौथा साल चल रहा है हम लोगों का, 20वां साल चल रहा है, तो उसी में तो एक एक तरह का सब जगह हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। और इसी के लिए शुरू से ही जो कर रहे थे, तो सब लोगों के लिए, सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के हित के लिए भी हम लोगों ने निरंतर काम कर रहे हैं। अब एक बात और कहना चाहते हैं कि वृद्धजनों, जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की सहूलियत के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब जिसमें सभी वर्गों के लोगों को अभी तक तो 400 रुपया प्रति महीने की राशि पेंशन के रूप में दी जाती रही है। लेकिन हमारा एक बार हुआ तो 21 जनवरी को ही, इसी में पिछले महीने 2025 को महिला संवाद कार्यक्रम में, तो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, हम सब लोग थे वहां, तो वहीं पर हम उन लोगों से बात सुन रहे थे, पूछ रहे थे उन लोगों की क्या स्थिति थी। तो उसी समय जो महिला प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में जो भी हम लोगों ने सोचा, तो उसी समय हम लोगों को लगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाना होगा और वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने जो 400 रुपया मिलता रहा है, तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोच लिया कि अब उनके लिए हम लोग 1100 रुपया इसकी शुरुआत करेंगे। यही हम लोगों ने सोच लिया। तब उसी के कारण से अब इसकी हम लोगों ने शुरुआत हुई। मुझे खुशी है, भाई को खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने अब ये तय कर लिया पूरे तौर पर। उस समय जब हम कह रहे थे उसके बाद से भी राज्य सरकार ने पूरे तौर पर तय कर लिया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये के बाद 1100 रुपये पेंशन की राशि पिछले महीने से, अर्थात जून महीने के प्रभाव से होगा। जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था, तो उसी साल के लिए पिछले महीने के लिए ही आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई और आगे के लिए हम लोगों ने सोच लिया है कि हर महीने का अगले महीने में 10 तारीख को हम लोग सब लोगों को ये सब काम कर देंगे। अब पिछले महीने के लिए 11 हो रहा है, तब इसी के लिए इस महीने का भी अगली बार 10 तारीख को ही सब लोगों को इस तरह का हम लोग सहयोग दे देंगे और सब तरह से समझ लीजिए शुरू से ही सब तरह से लोगों को लाभ होगा। सभी जगह के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने, मैंने अभी तो शुरू किया है तो इसलिए हमने बता दिया कि हर महीने आप 400 रुपये की जगह पर 1100 रुपया भी जो दिया गया है, इसको हर बार हर समय यही काम हम लोग करवा देंगे। सब लोगों को फायदा होगा। नैतिक दायित्व था कि लोगों के स्थिति में सुधार हो। इसके लिए तो हम लोग सभी सरकार के धन्यवाद का पात्र हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।